Assalamu alaikum class. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, let's take a quick revision of the previous agenda. In previous lectures, we have studied some number theory concepts in which I have shared how you will find out the GCD of large number and how you will find the multiplicative inverse by using extended Euclidean algorithm, and what are the relative prime numbers. And to find out the relative prime numbers, what are the possible theorems in which we have done the Fermat theorem, Euler-Thiessen theorem, and Euler theorem, and RSA algorithm. In the very previous class, we have discussed the public key cryptographic algo, that was RSA algo, and we have seen that how we can generate the public and private key pair, and how we will use public key for encryption and private key for decryption. In today's lecture, our main agenda will be the key management. We have studied in the very lectures that there are two kind of keys. One is the public key and other is the private key. For symmetric key encryption, we have a private key, and for asymmetric key encryption, we have public and private key pair. So please note down the chapter number for this topic. Chapter number 14 from William Stollick, and chapter number 15 will be from Behrouz Ferozen. So in today's agenda, we will discuss that how it is possible to distribute the symmetric key by using the symmetric encryption. And then we will discuss that how it is possible to do the symmetric key distribution using the asymmetric encryption. So the main idea is that how we will share the keys among different parties, because parties are not at the same location. Both can be at any place. So we need such important algorithms and important concepts, and a very intelligent computational studies to ensure the security and privacy of those keys. So let's start the today's lecture. So हमारे जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसका पहला पार्ट है वो है कि सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे बाय यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. यानी यहाँ पर की भी सिमेट्रिक है, यानी प्राइवेट की है, और उसको हम शेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. हमें ये पता है कि जब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात हो तो हमने असल में क्या करना है कि हमने जो की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी वही डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी. So note down the topic, and I am going to read it for you. For symmetric encryption to work, the two parties to an exchange must share the same key, and that key must be protected from access by others. So note down that we need one key and we need to secure that key. Therefore, the term that refers to the means of delivering a key to two parties who wish to exchange the data without allowing others to see the key. So main focus is the security of this key that is being shared by both of the parties. So students, what are different methods for distributing the key? आपके लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ. हमारे पास जो सेंडर है, सेंडर साइड है, हमारे पास रिसीविंग साइड है. सेंडिंग साइड क्या कर रही है, अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर रही है बाय यूजिंग द सीक्रेट की और प्लेन टेक्स्ट को, यानी साइफर क्रिएट कर रही है और सेंड कर रही है ओवर द इंटरनेट. ऑन द अदर हैंड डिक्रिप्शन हो रही है बाय यूजिंग द सेम की साइफर टेक्स्ट के जरिए से, और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट निकल रहा है. सो मेन फोकस क्या है कि ये जो की यहाँ पर लिखी हुई है, मेन फोकस ये है कि हम इसको किस तरीके से शेयर करेंगे ताकि कोई दरमियान की थर्ड पार्टी जो है वो इसको एक्सेस ना कर सके.
So what are the typical methods to distribute the key distribution in symmetric key environment? For two parties A and B, key distribution can be achieved in a number of following ways. पहला तरीका क्या है? A can select a key and physically deliver it to B. पहला तरीका तो ये है कि जो सेंडिंग डिवाइस है उसने जो भी के क्रिएट किया है, अगर तो वो करीब ही कहीं पर है या कोई ऐसी हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है, फिजिकली दिस इज पॉसिबल कि वो उसको एक इन्वेलप में डाल के उसको लॉक करके इधर से इधर पहुंचा दे. So again, this is not a good idea in today's environment, but this is a possible way. Second, a third party can select the key and physically deliver it to A and B. Now, the idea is that there will be third party organization. So let me change color for you. Suppose we have another one, a trusted party. And who is this trusted party? I will share it in the coming slide. This trusted party will have authority to generate the keys for any user in the internet. So suppose this is my sending device, so this trusted third party will generate the secret key for sending device and receiving device as well, and then distribute it. That means there is no need to share it by their own self. So we need to trust this party. For example, for monetary transactions, we use bank as a trusted party. So there can be such solutions. What is the third idea? If A and B are previously and recently used a key, one party can transmit the new key to the other, encrypt using the old key. अगला तरीका ये है कि अगर तो कोई previous उनकी ट्रांसमिशन हो रही थी और उसने कोई ना कोई की इस्तेमाल की थी, तो नेक्स्ट की उस पुरानी की के साथ इनक्रिप्ट करके आप भेज देंगे. ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इससे दो चीजें अचीव हो सकती हैं. एक तो कम्युनिकेशन चैनल जो आपका एक पूरी चेन क्रिएट हो रही है, एक मैसेज को दूसरे और तीसरे चौथे जितने भी आपके ब्लॉक्स ऑफ डेटा बने हैं वो सारे आपस में लिंक हो जाएंगे. यानी पहली सपोज आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक में डिवाइड करती हूँ. मेरे पास जो पहला ब्लॉक था M1 वो मे बी इनक्रिप्ट हुआ हो K1 के साथ. फिर एक की अगर वो K1 को शेयर करना चाहता है, K2 को शेयर करना चाहता है, तो K1 को इनक्रिप्ट करके भेज दिया जाएगा with the K2 with the new key. सॉरी, K2 को इनक्रिप्ट करके with the K1 भेज दिया जाएगा. इसी तरह फिर नेक्स्ट ब्लॉक में वो K3 अगर भेजना चाहता है तो वो K2 के जरिए से इसको इनक्रिप्ट करके भेज देगा. सो ये एक चैनल सा, एक चेन सी क्रिएट हो जाएगी. ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन सिमेट्रिक एनवायरनमेंट और बहुत जगह पे ये इस्तेमाल भी होता है. फोर्थ मेथड जो है सिमेट्रिक की का वो है इफ A and B each has encrypted connection to the third party C can deliver a key on encrypted links to A and B. So I'm going to make a static to this idea because this idea is similar to the second idea. That means we have a third trusted party, but in the second point, the channel was not encrypted. In the fourth point, the channel, the connection is also encrypted. And suppose this is the C trusted party that will share the A and the key for A and B and send it to the sender and receiver independently, but the channel between the sending device and receiving device is also secure. आप इसकी एग्जांपल समझने के लिए अपने जहन में व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन को अपने जहन में लेकर आए. व्हाट्सएप के अंदर ना सिर्फ आपका मैसेज इनक्रिप्टेड होगा बल्कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है एंड टू एंड एंड नोड टू नोड वो भी इनक्रिप्टेड होता है.
सो ये 4 तरीके जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, इनमें से कोई सा भी तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। पहला तरीका ये है कि ए जो है वो बी को फिजिकली की जो है वो शेयर कर देगा। सेकंड के अंदर क्या है कि थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एंड डेवलप की, यानी इस एग्जांपल के मुताबिक सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है की इसको जनरेट करने के लिए और शेयर करने के लिए। और ये पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, अभी कमिंग स्लाइड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ तीसरा तरीका ये था कि हम नई की को सेंड करने के लिए पुरानी की के साथ उस की को इनक्रिप्ट करके भेजते चले जाएं। और फोर्थ मेथड हमारे पास ये था, जैसे कि सेकंड मेथड में बताया गया, कि सी जो है वो दोनों को कीज शेयर करेगा, ए और बी को। ना सिर्फ वो की इनक्रिप्टेड होगी बल्कि वो कम्युनिकेशन चैनल भी इनक्रिप्टेड होगा। So students, this is the third party I was talking about in the previous slide. थर्ड पार्टी को हम लोग कहते हैं KDC, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऐसा है सेंटर है जैसे कुछ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। इसको इस्तेमाल करने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। Let's discuss that how this key distribution center will work. The use of key distributed center is based on the use of hierarchy of keys. At a minimum, 2 level of keys are used. Who are those keys? One is called the session key, another key is called the master key. So what is the session key? इसके नाम से आपको पता चल रहा है, जब सेशन क्रिएट होगा टेम्पररी, तब एक उस स्पेसिफिक टाइम के लिए एक की जनरेट होगी। Communication between end system is encrypted using a temporary key, often referred as the session key. Typically, the session key is used for the duration of a logical connection and then discarded. So keep this thing in your mind that if we are using KDC, suppose we are using KDC, Key Distribution Center, as a centralized trusted authority to share the key and manage the key, and I have one sending device A and one receiving device as B, what will happen? Suppose A is going to request the KDC that please make one key for me. There will be one session. There will be one session from A to KDC, and there will be one session key for A to B as well. So आप ये जहन में रखें कि इसको भी एक सेशन की मिलेगी जिस भी चैनल में कम्युनिकेशन करनी है, और इन दोनों के लिए भी उसे एक सेशन की क्रिएट करनी पड़ेगी। और सेशन की अभी जिस तरह से आपको बताया गया कि टेम्पररी होती है और एक ख़ास टाइम के लिए होती है, जब तक कि वो उसका कनेक्शन जो है वो क्रिएट रहता है। सो व्हाट इज़ द सेकंड की? दूसरी की जो केडीसी इस्तेमाल करता है वो है मास्टर की। मास्टर की के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सेशन की से ज़्यादा सिक्योर और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। Master key is shared by the key distribution center, an end system or user, and used to encrypt the session key. इसका मतलब ये है कि जब भी सेशन की जनरेट होगी और शेयर होगी तो उसको दोबारा से इनक्रिप्ट किया जाएगा by using the master key of KDC. ये मास्टर की है, इसके ऊपर मैं डैश लगा देती हूँ। इसी तरह यहाँ इसके लिए भी जो की शेयर हो रही होगी उसको भी मास्टर की ऑफ के साथ, के डैश के साथ इनक्रिप्ट किया जाएगा। सो अब आप लोगों ने अपने जहन में ये बात रख लेनी है कि केडीसी में 2 कीज चाहिए होंगी। एक को हम सेशन की कहते हैं, दूसरे को हम मास्टर की कहते हैं। सेशन की क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जनरेट की जाती है ताकि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, और दूसरा उस की को शेयर करने के लिए हमारे पास मास्टर की होगी जो कि इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी।
So students, let's consider the this algorithm and this idea by this diagram. इस डायग्राम को समझने के लिए आप कुछ सिंबल्स आपने यहाँ पे लिखे, वो आप लोग नोट डाउन कर लें। K of A क्या होगा? That is master key of A. K of B क्या होगी? Master key of B. ID of A क्या होगा? Identifier of A, that could be the network address, IP address, MAC address, any other identifier. ID of B will be identifier of B. K of S is the one-time session key. Unknowns N1 and N2 is the secret information that will be shared between all the parties. So let's start with the KDC, Key Distribution Center. अब KDC जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कीज को क्रिएट और डेवलप करने के लिए। सपोज हमारे पास दो लोग हैं A एंड B, इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर लिखा हुआ है, हम इसको सेंडर और रिसीवर डिवाइस भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले इनिशिएटर यानी जो बात करना चाहता है उसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की है की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ कि दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, और दैट इज N1, दैट इज सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि मुझे पता है। ये सारी चीजें उसने अपनी भेज दी हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने अब क्या किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूरी लाइन जो है वो आपने बड़े ध्यान से देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इनक्रिप्ट हो रही हैं और यही सारी कमाल की चीज है। सबसे पहले उसने क्या किया है, इनक्रिप्ट किया है किसको? इनक्रिप्ट किया है सेशन की को और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए को बाय यूजिंग दी के ऑफ बी, यानी मास्टर की ऑफ बी के जरिए से उसने ये वाला एक पूरा ब्लॉक क्रिएट किया। लेट मी राइट हाईलाइट इट फॉर यू। सेकंड जो इंक्रिप्शन है वो किसने की है, वो के ऑफ ए के साथ, यानी ए की जो मास्टर की है उसके साथ उसने काफी सारी चीजें इनक्रिप्ट करके भेज दी है। देखिए क्या क्या है उसमें, N1 and ID of A and B and session key K of S। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो बार सेशन की जो है वो शेयर हो रही है, एक दफा यहाँ पे और एक दफा यहाँ पे। और इसको फिर इनक्रिप्ट किया है, इस पूरे ब्लॉक ऑफ डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है बाय यूजिंग दी K of A। सो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी ये जो दो लाइंस हैं ये एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ पे मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं इस तरह से तो हमारे पास दो चीजें जो है वो इनक्रिप्ट हो रही हैं बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ A एंड मास्टर की ऑफ A एंड मास्टर की ऑफ B। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये A के पास आ चुकी है। अब A क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा क्योंकि उसके पास अपनी प्राइवेट की तो है ही। वो इस पूरे ब्लॉक को, ये जो सेकंड वाला है, इसको डिक्रिप्ट करेगा और उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो निकाल लेगा और वो सेंड करेगा अब रिस्पॉन्डर को बी को। क्या क्या चीजें सेंड करेगा, वो कहेगा जी दिस इज माय आइडेंटिफायर, दिस इज माय सेशन की एंड आई हैव encrypted with your key that from where the A has got that key। हमें ये पता है कि जो के ऑफ बी है ये सीक्रेट की है बी की या मास्टर की है बी की, तो वो ए के पास कहाँ से आई है? हमें ये बात पता है कि वो केडीसी ने शेयर किया है। उसने इसको भेज दिया है, उसने कहा ओके दैट इज क्लियर, दैट इज नाउ माय सेशन की and that is my secret information and let's have it। And then at the fifth point they will again share the same thing, this is just like the handshaking protocol। उसने जो उसको information दी है सेम information उसने उसको भेज दी है but applying by some function। सो मेन आइडिया सिर्फ आपको समझाने का इस स्लाइड का ये है कि किस तरीके से KDC is solely responsible for
डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ की। सो आपको इसे देखकर ही ये चीज़ पता चल रही होगी कि इस टेक्निक के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि हम अपनी, क्योंकि हमें की सिक्योरिटी हमें चाहिए, बहुत नंबर ऑफ कीज़ हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन केडीसी ये आसानी से कर सकता है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मल्टीपल कीज़ जनरेट करेगा, मल्टीपल कीज़ जो है वो शेयर कर सकता है, और एक फास्टर मेथड है और एक सिक्योर मेथड है कीज़ को शेयर और डिस्ट्रीब्यूट करने का। मगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें डिपेंड होना पड़ेगा केडीसी के ऊपर। अगर केडीसी काम नहीं कर रहा तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। ए बी सी डी जितने भी लोग हैं हमारे साथ नेटवर्क में लिंक्ड है, वो आपस में सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। सो केडीसी, it will be the centralized authority. This is positive and negative as well. इसके अलावा अब मसला यहाँ पर सेशन की का भी है कि सेशन की का यूज़ जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। सपोज मैं कोई बात कम्युनिकेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो कम्युनिकेशन जो है वो 30 मिनट्स से ज़्यादा है, 30 मिनट्स हो चुके हैं मुझे बात करते हुए, और मे बी जो मेरी सेशन की थी उसमें जो टाइमर सेट किया गया था वो 30 मिनट्स ही था। उसका मतलब यह है कि जब 30 मिनट्स पूरे हुए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे नया सेशन की इससे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पॉज आ जाएगा कम्युनिकेशन में, वो ए को दोबारा से केडीसी से नया ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और नया ब्लॉक, ये जो नंबर 2 वाला ब्लॉक है, ये दोबारा से उसको कॉल करना पड़ेगा, और फिर जाके इसकी कम्युनिकेशन होगी। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद दिस आइडिया। सो फिर भी ये मेथड जो है केडीसी का वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेहतर फीचर्स भी मौजूद हैं। सो आपकी बुक में कुछ इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं उन्होंने। एक क्या है, हिरारिकल की कंट्रोल है, सारी चीज़ें केडीसी के पास होंगी, फिर पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स। सेकंड क्या है, सेशन की लाइफ टाइम क्या है, उसकी कितनी लाइफ है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 30 मिनट्स अगर उसकी लाइफ है तो 30 मिनट्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर नए सेशन की जनरेट करनी पड़ेगी। बट ट्रांसपेरेंट की कंट्रोल स्कीम क्रिएट करने के लिए we need to add the hash functions, we need to create the hash, and we need to develop the digital signatures. अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है, हैश फंक्शंस क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमारे लिए जो ये की है इसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, ताकि कोई हमारे डेटा को या हमारी कीज को गलत मिसयूज ना कर सके। दूसरी चीज़ क्या है, कंट्रोलिंग की यूज। फोर्थ जो यहाँ पे इशू लिखा हुआ है वो है कंट्रोलिंग की यूज। अब अगर मेरी वो 30 मिनट्स के लिए मुझे की दे दी गई है और ये की मैं 30 मिनट्स के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं उसको मुख्तलिफ जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आईपी या मैक एड्रेस की कि किधर से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो वो 30 मिनट की कहीं कहीं पर भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है, बहुत डिफरेंट तरह के डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और हम मिसयूज भी कर सकते हैं इसको। मे बी कोई जो है वो एक हैकर है, वो एक की ले रहा है और वो हैकिंग, हम तो केडीसी को ट्रस्ट करते हैं। अब ए से जो भी, ए कुड बी वन हैकर एज वेल, तो ए हमें जो भी इंफॉर्मेशन देगा वी विल ट्रस्ट that information, and we will use our session key and we will decrypt it by using our private key. So this is the whole idea कि ये कितना disturbing है अगर हमारे पास नॉन रेपुटेशन का कोई या सिक्योरिटी का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सो अगली चीज जो है वो है सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब हमें पता है सिमेट्रिक की भेजनी है, हमने प्राइवेट की को शेयर करना है, लेकिन अब हमारे पास एसिमेट्रिक की हम इस्तेमाल करेंगे, और एसिमेट्रिक में हमें पता है कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की पेयर होता है। Once public key have been distributed or have become accessible,
secure communication that thwarts eavesdropping, tampering, or both is possible. Public key encryption provides for the distribution of secret key to be used for conventional encryption. अब पब्लिक की का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि ए और बी जो भी लोग हैं, जो भी हमारे पास सेंडर और रिसीवर डिवाइस है, दोनों के पास क्या है, दोनों आपस में इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की ऑफ ए एंड डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की ऑफ ए इस्तेमाल होती है, यानी की पेयर होगा कम्युनिकेशन के लिए। सो आइडिया ये है कि अब हमने शेयर करनी है अपनी की, सीक्रेट की या प्राइवेट की, ये इसको मैंने शेयर करना है। तो मैं कैसे करूंगी? अब मैं शेयर करूंगी बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ बी और ए। अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हम इनक्रिप्ट करेंगे। आइडिया ये है कि जो प्राइवेट की है उसको सेंड करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए हम पब्लिक की का सहारा लेंगे, पब्लिक की इस्तेमाल करेंगे। सो अब देखते हैं आगे। So students, what is the simple secret key distribution? By using the asymmetric key encryption or asymmetric encryption. होगा क्या जी, जरा ध्यान से हमें इसको देखना होगा। Let me highlight it for you. A generate the public private key pair. पहला काम क्या होगा? Public private key pair generate होगा and transmit a message to B containing the public key of A and identifier of A, that is ID A. तो दो चीजें भेजी जाएंगी, एक तो पब्लिक की ऑफ ए सेंड होगा, साथ ही साथ आईडी आइडेंटिफायर ऑफ ए भी सेंड होगा। बी जनरेट द सीक्रेट की KS और द सेशन की एंड ट्रांसमिट इट टू ए, एनक्रिप्ट विद द ए's पब्लिक की। अब बी क्या करेगा? KS जनरेट करेगा और उसको सेंड कर देगा किसको? ए को, बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ ए। मैं साथ ही लिख रही हूँ। तीसरा स्टेप क्या है? A compute the decryption by using so many things. Let's check it out. What are those things? Session key को encrypt किया जाएगा by using the public key of A, और फिर decrypt किया जाएगा by using the private key of A to recover the secret key, because only A can decrypt the message, because for the encryption the user has used the public key of A. आपने ये शुरू में देखा कि यहाँ पे public key यूज हुई है, तो डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की ऑफ ए इस्तेमाल होगी। मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये नजर आ जाए। प्राइवेट की ऑफ ए के जरिए से ही इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, बिकॉज ओनली ए कैन डिक्रिप्ट द मैसेज, ओनली ए एंड बी विल नो द आइडेंटिफायर्स ऑफ सीक्रेट की, दैट इज KS. A discarded the public and private key and B discarded the public key of A. So ये सारे स्टेप्स हैं। पहला काम ये है कि पब्लिक की पेयर जनरेट होगा और सेंड करेगा ए अपनी पब्लिक की के साथ अपने आइडेंटिफायर को इनक्रिप्ट करके। बी एक सीक्रेट की जनरेट करेगा और वो इसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ ए। अब बी ने ए को इंफॉर्मेशन भेज दी है, ए क्या करेगा? ए डिक्रिप्ट करेगा सारी इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ ए, यानी अपनी ही प्राइवेट की के जरिए से। आपको ये बात पता है कि ए के पास ही अपनी प्राइवेट की होगी, बी के पास सिर्फ पब्लिक की होगी ए की। और फिर इस तरीके से जो कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश होगा, फिर ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कीज एक्सचेंज करेंगे और एंड पे अपना जो डेटा है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो बात जो अभी आपको बताई गई है उसकी जो एक डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है 14.7 फिगर। ए क्या भेज रहा है? पब्लिक की और आइडेंटिफायर। बी क्या भेज रहा है? पब्लिक की ऑफ ए एंड सेशन की और सीक्रेट की, एंड इनक्रिप्ट कर रहा है इसको पब्लिक की ऑफ ए के साथ। और इसके बाद के स्टेप्स आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट किया जाएगा और इसमें से सेशन की को जो है वो निकाल लिया जाएगा। अब सीक्रेट की विद दी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये एक अलग नेक्स्ट लेवल है,
जिसमें दोनों पार्टीज अपने आप को जो है वो इंश्योर कराएंगी और अपने आप के की सिक्योरिटी जो है वो स्टैब्लिश करेंगी, सिक्योरिटी चैनल स्टैब्लिश करेंगी। अब देखें कि इनिशिएटर ए ने क्या किया है, अपना आइडेंटिफायर N1 और पब्लिक की ऑफ बी के साथ उसने इनक्रिप्ट करके बी को भेज दिया है, क्योंकि ए के पास बी की पब्लिक की मौजूद होगी। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड में क्या हुआ है, उसने अपना आइडेंटिफायर और जो हम उसके पास एक आइडेंटिफायर आया है, उन दोनों को कंकैटिनेट करने के बाद पब्लिक की ऑफ ए के साथ इनक्रिप्ट करके इनिशिएटर को भेज दिया। थर्ड स्टेप में उसने अगेन N2 को, यानी N2 अब इसके पास आ गया है, ये श्योरिटी के लिए कि क्या N2 इस तक पहुंच चुका है और N2 ठीक है या नहीं है, उसने N2 को अपनी पब्लिक की के साथ, पब्लिक की ऑफ बी के साथ अगेन इनक्रिप्ट करके भेज दिया है। और साथ ही साथ उसने अपनी पब्लिक की ऑफ बी के जरिए से प्राइवेट की ऑफ ए और सेशन की ऑफ ए भी भेज दिया। यानी फोर्थ स्टेप के ऊपर जाकर उसने सेशन की जो जनरेट की है वो भी शेयर कर दी है और अपनी प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करके भी भेज दिया है। सो ये 4 स्टेप्स का मकसद क्या है, इससे 2 चीजें हासिल हो रही हैं। एक तो दोनों ही अपने आइडेंटिफायर्स को शेयर करें, यानी आईडी ऑफ ए एंड N1 एंड N2, और साथ ही साथ दोनों अपनी जो प्राइवेट और पब्लिक की सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो ये है कि ए अपनी प्राइवेट की भी यहाँ पर भेज रहा है। अब जो फोर्थ मैसेज होगा इसको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ जो है वो सेंड करना पड़ेगा। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक की ऑफ बी के साथ इनक्रिप्ट किया गया है, जो अंदर प्राइवेट की ऑफ ए के जरिए से जो सेशन को उसने इनक्रिप्ट किया है, इसको एक एनवेलप में जो है वो डाल दिया जाता है और दोबारा से इनक्रिप्ट किया जाता है बाय यूजिंग द मास्टर की। मास्टर की जनरेट की जाती है और उसको एक और एनवेलप में डाल के सेंड कर दिया जाता है। तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिकेशन भी हासिल होती है, साथ ही साथ नॉन रेप्यूटेशन जो है उसके फीचर्स भी अचीव हो सकते हैं। सो ये जो सारे स्टेप्स अभी आपको बताए गए हैं वो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं कि बी क्या करेगा, ए क्या करेगा और फिर कैसे जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज कैसे जनरेट होगा। सो आप लोगों ने ये वाली स्लाइड पढ़ लेनी है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को इस ड्राइंग में समझाई है उस सारे के स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा कि हम अपनी सीक्रेट की को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, यानी प्राइवेट की को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। आपको दोनों मेथड्स बताए गए हैं, आपने इस पूरे को रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि अब पब्लिक की सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे और पब्लिक की को हम कैसे सिक्योरिटी के साथ शेयर करेंगे। Thank you very much, students.